Hello everyone, welcome back to Java's class. I am Ashish Goel and we are studying statements and control structures in Java. Okay, so far we have discussed about the if-else statements, the conditional and the conditional constructor statements, right? तो अभी बात करते हैं यहाँ पे iterations की. ठीक है, तो अभी तक हमने बात कर लिया है सिलेक्शन की. तो सिलेक्शन में हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल थे जावा में, एक इफ एल्स वाला और एक आपका यहाँ पर ये आपका स्विच केस और कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, राइट. तो स्विच केस और इफ एल्स में हमने देखा कि अगर हमारे पास में मल्टीपल चॉइसेस हैं, अगर हमारे पास में डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो हम कंडीशन के बेसिस पे कैसे डिसीजन ले सकते हैं और उस डिसीजन बेसिस पे कोई एक पर्टिकुलर टास्क कैसे परफॉर्म किया जा सकता है. नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन हाउ वी कैन डू सर्टेन टास्क रिपीटेडली. तो रिपीटेडली काम करने के लिए यानी कि आइटरेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं आइटरेशन स्टेटमेंट. तो देखिए किस तरीके से हम काम करेंगे जावा के अंदर आइटरेशन के साथ में. तो Java iteration statement, the iteration statement allow a set of instruction to be performed repeatedly until a certain condition is fulfilled. ठीक है, तो जो भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है हम उसे बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जब तक कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन, सर्टेन कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, या फिर जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है, तो या जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, राइट. So this is how we can say that some set of statements are going to execute again and again until unless the condition you specified is get false or it gets fulfilled, right? Well, the certain and the iteration statements are also called the loop or the looping statements. तो जो iteration statements है आप उन्हें loop या looping statement भी कह सकते हैं. That is also same. So you can say loop or you can say the iteration statement. That is same, right? So well, loop की हम बात करने जा रहे हैं. More commonly we use a name loop for this type of statements, and we are discussing the loop in Java. So Java provides three kinds of loop like for loop, while loop, and do while loop. Okay, elements of iteration. When we are talking about the elements of iteration, that means what are the participants or the parts of the loop. Then every loop has its elements that control and governs its execution. Generally a loop has four elements that have different purposes. Number one, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन. तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन. ठीक है, तो जब हम एक लूप लेके चलेंगे, जब बात कर रहे हैं हम आइटरेशन स्टेटमेंट की, तो हम यहाँ पर एक आइटरेटर वेरिएबल लेके चलेंगे. आइटरेटर वेरिएबल विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द आइटरेशंस. तो आइटरेशंस करने के लिए या आइटरेशन को कंट्रोल करने के लिए यू कैन से, तो वो हमें चाहिए एक वेरिएबल विच इज नोन एज द आइटरेटर variable, and that iterator variable first need to be initialized before getting into the loop. So this is first expression, or this is the first thing what we generally require in case of iteration, the first element, and that is nothing but the initialization expression. Okay, तो सबसे पहले variable को initialize कर देंगे. Then second one is test expression. So we need to test the expression, means we need to test the iterator variable for a particular or certain condition. If the condition is true, then only we get into the loop again, or otherwise we skip the loop, right? So like that, so we need a test condition, certain test condition, which is actually performed on the iterator normally. ठीक है, तो in an anti-testing loop, the text expression is evaluated before entering into the loop, whereas in an exit control loop, the test condition is evaluated before exiting from the loop. So we have two type of loops basically, anti-control and the exit control loop. तो anti-control loops में आते हैं for and while, और exit control loop में आता है do while.
फॉर एंड वाइल के केस में जो हम फॉर या वाइल या लूप में एंटर कर रहे हैं बेसिकली, then your condition gets checked first. If the condition is true, then only we get into the loop, otherwise we skip the loop. Okay, but when we are talking about exit control loop like do while loop, so in do while loop the condition is checked at the end of the loop at the time of exiting from the loop. So that means when we entered in the loop there is no condition to test, rather to continue for next time it is a condition to test, and once the condition is tested, if it is evaluated to true, then only the loop will execute again, otherwise it will not execute, rather you are getting exit from the loop, right? We'll see practically कि किस तरीके से यहाँ पे ये चीज होती है. Okay, in Java the for loop and while loop are entry control loop and do while loop are exit control loop. Right now, थर्ड पॉइंट, तो फर्स्ट हो गया इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, सेकंड हो गया टेक्स्ट एक्सप्रेशन, थर्ड इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन इज अपडेट एक्सप्रेशन. तो जैसे हमने बात किया कि हमारे पास एक आइटरेटर होगा, तो आइटरेटर को इनिशियलाइज करेंगे फर्स्टली, देन वी नीड टू चेक सम कंडीशन विद दैट. ठीक है, कि हमें आइटरेटर को कहाँ तक लेके जाना है. एंड ऑफ कोर्स अब जब अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कहाँ तक लेके जाना है, तो कंडीशन, सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करने के लिए we need to update the expression, the iterator as well, and there it comes your update expression, right? So the update expression changes the value of loop variable, or you can say the loop control variable, जिसे हम iterator variable भी कह रहे हैं. The update expression is executed at the end of the loop, generally after the loop body is executed. Okay, in general, but sometimes it could be different, right? Means within the loop you can do the updation uh, at any point of time, or even in for loop you can do, or you normally do the updation at the header of the loop itself, right? बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट. नाउ फोर्थ वन इज बॉडी ऑफ लूप, जो कि स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास जितने भी यहाँ पे रहेंगे. तो बॉडी ऑफ लूप, द स्टेटमेंट दैट आर एग्जीक्यूटेड repeatedly as long as the test expression is true from the body of loop, right? So these are the four elements which we are going to deal with in case of iterations in Java. All right. For the loop is easiest to understand. For loop is the easiest loop in the Java to understand basically. Generally, in case of for loop, what we can do is we can have the initialization, test, and updation statements in a one line at the time of writing header of the for loop. So it is considered as the easiest loop actually, right? And normally, there is no rule like where to use for and while, but normally when we are using for, then we need to take care of if we are using for, then the condition must be from one means one place to one value to some value we know. When we are working with a series of values like that, then we use for loop. Okay, तो एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बेसिकली कि आपको फॉर कहाँ यूज करना है या वाइल कहाँ यूज करना है, या कोई रूल इस टाइप से नहीं है. लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें फॉर लूप यूज करना है या वाइल लूप यूज करना है तो कहाँ यूज करें. तो फॉर को जनरली आप यूज कीजिए जब आपको लग रहा है कि हाँ आप एक पर्टिकुलर सीरीज में काम कर रहे हैं, आपको पता है कि आपका स्टार्ट कहाँ है, आपका एंड कहाँ है, तो स्टार्ट टू एंड कहाँ तक जाना है, एक फिक्स आइटरेशन आपको करना है. ठीक है, तो फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशंस आप लेके चल रहे हो, या फिर फिक्स अपडेशन आप लेके चल रहे हो लाइक +1 और -1. ठीक है, तो आप यूज कीजिए फॉर लूप, दैट इज रिकमेंडेबल, राइट? तो आप यहाँ पर वैसे तो कहीं भी यूज कर सकते हैं, बट यस दिस इज द थिंग वेयर यू कैन use this which is recommended, right? In for loop, all its loop control statements are gathered in one place, or you can say in one statement on the top of the loop, other uh, top of the loop. The general statement of the for loop statement is for initialization expression,
test expression and update expression like this. Alright. तो जैसे कि हम बात कर चुके हैं, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन क्या है? इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन इज द वन जहाँ पे आप ये डिक्लेयर करते हो और इनिशियल वैल्यू असाइन करते हो टू योर आइटरेटर वेरिएबल, कहाँ से बेसिकली आपको शुरू करना है, ये वो वैल्यू है। एंड टेस्ट एक्सप्रेशन में आप कंडीशन चेक करते हो, जिसमें आप आइटरेटर वेरिएबल के साथ में ये चेक करते हो कि आइटरेटर वेरिएबल एक सर्टेन वैल्यू तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, या एक सर्टेन वैल्यू आइटरेटर वेरिएबल में आई या नहीं आई, या उससे कम वैल्यू है या उससे ज्यादा वैल्यू है, व्हाटएवर उस टाइप की कंडीशन आप लगाते हो। एंड देन यू गिव द अपडेशन एक्सप्रेशन। अपडेट एक्सप्रेशन में आप अपडेट करते हो आपके आइटरेटर को, राइट? तो जो भी आइटरेटर आप लेके चल रहे हो उस आइटरेटर को आपको +1 करना है, -1 करना है और व्हाटएवर, तो इस टाइप से कुछ यहाँ पे चीजें आप करते हो। ओके, देन इट कम्स योर बॉडी ऑफ लूप। तो बॉडी ऑफ लूप में वो स्टेटमेंट्स लिखे जाएंगे जो स्टेटमेंट्स हम चाहते हैं कि फॉर जब एग्जीक्यूट हो तो स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो दोज स्टेटमेंट दोज हु वांट्स टू एग्जीक्यूट रिपीटेडली शुड बी written within the for loop, which is known as body of the loop. Like, let's see example how to work with this for loop. To start with a very simple example, here we want to print for hello for 5 times using the for loop. तो अगर हम अभी यहाँ पे for loop यूज नहीं करते हैं तो हमें प्रिंट करने के लिए 5 times प्रिंट एलन लिखना पड़ेगा, दैट सिंपल। बट हम ऐसा नहीं चाहते, हमें यहाँ पे चाहिए कि हम 5 times जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली और वी नीड टू राइट इट वंस ओनली। तो हम क्या करेंगे, सपोज हमने ये स्टेटमेंट लिखा है println or here written like hello, fine. So that is statement we want that execute for 5 times, तो उसके लिए हम एक for loop लगाएंगे। in for loop we initializes a variable like I, हमने ले लिया आई, आइटरेटर के लिए हमने शॉर्ट लिया आई। तो जनरली हम लूप में देखेंगे कि हम आई वेरिएबल को एज एन आइटरेटर यूज कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बेसिकली आइटरेटर है तो इसके लिए हमने आई यहाँ पे यूज कर लिया। एंड नाउ डेज इट इज वेरी कॉमन एंड वेरी कॉमन इन यूज, तो आई आप लोग पहले भी यूज कर चुके होंगे। तो फॉर आई इक्वल्स टू 1 हमने ले लिया। इन जावा यू कैन डिक्लेयर दिस आई हियर एज वेल, हियर इटसेल्फ। तो आप यहाँ पर ही डिक्लेयर करते हो, सीधा सीधा आप उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हो। अभी आपको कहाँ तक जाना है, हम चाहते हैं कि 5 times चले, तो देयर इज शुड बी सम कंडीशन। तो द कंडीशन मस्ट बी कि आई जो है 1 से लेकर 5 तक जाए, यानी कि ये लूप तब तक चलना चाहिए जब तक कि आई लेस देन इक्वल्स टू 5 रहे, यानी कि 1 के लिए चले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो इस तरीके से चले। और जब 6 आए तो हमारा लूप ब्रेक हो जाए। और जैसे हम बात कर रहे हैं 1 देन 2 देन 3, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आई को हम अपडेट करेंगे, ठीक है, अपडेट करेंगे बाई 1, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे आई में प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो भी हमारे लूप बॉडी स्टेटमेंट है वो भी हमारा फिलहाल एक ही है, लूप बॉडी स्टेटमेंट, एंड दैट लूप बॉडी स्टेटमेंट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो। तो इसको हमने यहाँ पर फॉर लूप के अंदर कवर कर दिया, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे आई को अलग से डिक्लेयर करो और फिर उसे अलग से जा करके एक्चुअली आप इनिशियलाइज करो फॉर लूप में, आप ऐसा भी कर सकते हो, इट्स ऑल योर चॉइस, राइट। तो यू हैव बोथ द ऑप्शंस, यू डिक्लेयर द वेरिएबल बिफोर फॉर लूप और यू डिक्लेयर द वेरिएबल विद इन द फॉर लूप बाय इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल, ठीक है। ऑल योर चॉइस, व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड वेयर हाउएवर यू वांट टू डू, राइट। इसको भी हमने सेव किया, इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। कंपाइल करने के लिए जावा सी एंड फाइल नेम, तो फाइल नेम है हमारा फॉर x1.java, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं जिससे कि हमें प्रोग्राम के साथ साथ उसका आउटपुट भी दिखाई दे सके।
See, the code has been compiled with no error. Java for example one. See, so we have output 5 times hello, right? So this is how this particular loop is being worked. Okay, let's check it out how it is working. Okay, so let's start with very first thing. So firstly, it I is getting initialized here. I become uh, 1, and then the condition is going to check whether I is greater than equals to less than equals to 5 or not. ठीक है, तो अभी I 1 है और हमने चेक किया लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये यहाँ पर आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, हेलो डिस्प्ले होगा, और ये आ गया आपका हेलो यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम। और फिर हम उसके बाद पहुंचेंगे वापस से अपडेट करने के लिए। ये अपडेट होगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो जाएगी 1 से 2, और फिर हम वापस से इस स्टेटमेंट पे पहुंचेंगे, फिर से ये डिस्प्ले करेगा हेलो, और फिर से ये अपडेट करेगा। ठीक है, एंड अपडेट के बाद ये सॉरी यहाँ पर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा कि ये वाला जो है ये नहीं रहेगा, राइट। तो अपडेट करेगा, अपडेट से वैल्यू हो जाएगी 2 से 3, 3 यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू, हम फिर से अंदर आ जाएंगे, फिर से एक बार हेलो, ये थर्ड टाइम हेलो प्रिंट हो गया। उसके बाद हमारा वापस से हम आई प्लस प्लस में पहुंचेंगे, फिर से कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी, फिर हम अंदर पहुंचेंगे, यहाँ पर हम आ गए, ये फोर्थ टाइम हेलो प्रिंट हो गया। अभी हम वापस पहुंचे, आई की वैल्यू फिर अपडेट हुई, 5 हो गई, कंडीशन फिर से ट्रू, हम अंदर पहुंचे, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, 5 फिफ्थ टाइम आपका हेलो डिस्प्ले हो गया। उसके बाद हम फिर ऊपर पहुंचे, यहाँ पर आई की वैल्यू फिर अपडेट हुई, आई जो कि अभी तक 5 था 6 हो जाएगा, एंड क्योंकि 6 हो गया कंडीशन फॉल्स, एंड वी एग्जिट फ्रॉम द लूप। ठीक है, और आप देख सकते हो कि हमारी आउटपुट वैल्यू आ चुकी है, right? This is how this particular loop gets executed. Okay, so it's a very simple and small example. Okay, let's move on and see one more example to understand the for loop better. Here we want to print some value like 1 to 10, right? For this, what we need to do is first we need to declare a variable like I, then a for loop I equals to 1, हमें 1 से show करना है, I is less than equals to 10 and I plus plus, right? Here what we need to do is we can display प्रिंटलन, यहाँ पर i को ही हम डिस्प्ले कर सकते हैं क्योंकि i की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से अपडेट हो रही है, एंड वी वांट टू प्रिंट 1 to 10 numbers. Save it and hit compile. Okay, Java C for ex2.java. Okay, and then रन कराने के लिए ये आ गया आपका आउट सिंपली। All right, what we can do here,
we can also have some value from user like and we want that up to an the number is going to display, right? तो उसके लिए हम यहाँ पे तो स्कैनर यूज कर लेते हैं और you can use buffer reader br equals to new reader new string for stream reader system.in, राइट। क्योंकि बफर रीडर हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा थ्रोस आईओ एक्सेप्शन और इधर हम यूज करेंगे import java.io.star, राइट। यहाँ पर एक वैल्यू रीड कर लेते हैं नंबर, मैसेज दिखा लेते हैं पहले, enter any number and यहाँ पर लिख रहे हैं n equals to scan dot sorry it's br dot readline और इसको हम डाल देते हैं integer dot parse int में, like this। तो ये n में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और अभी हम कहाँ तक जा रहे हैं, ये अभी हम जा रहे हैं n तक। सेव किया हमने, कंपाइल एंड रन, वापस से कंपाइल, ओके एस रह गया, इसको करो, रन, एंटर एनी नंबर से हमने कहा 5 तो ये 5 तक दिखाएगा, फिर हमने रन कराया, हमने कहा 8 तो ये लाइक 8 दिखाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूजर ड्रिवन प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो यहाँ ये डिसाइड करेगा प्रोग्राम यूजर के इनपुट के बेसिस पे किसे कहाँ तक जाना है, ऑलराइट। Okay, let's move on and check out one more example. Okay, now here we want to print and to 1, it means in reverse. So how we can do so? Okay, let's check it out. Port java.io.star, क्योंकि बफर रीडर हम यूज करने वाले हैं, integer I and n, okay, buffer reader br equals to new buffer reader new string reader system.in। ये आ गया हमारे पास बफर रीडर। अब हमें रीड करना है वैल्यू, इंटर एन, लाइक हमने कहा एंटर एनी नंबर, ओके। तो हियर
n equals to, जैसे पिछली बार क्या, इंटीजर डॉट पास इन br डॉट रीड लाइन. देन फॉर लूप जो कि हमने रखा I equals to n because it need to begin with the given number and go up to 1. राइट, तो रिवर्स में चलना है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और I को हमने कर दिया माइनस माइनस. ऑलराइट, statement system dot println dot, सॉरी I only, क्योंकि हमें सिंपल I की वैल्यू को डिस्प्ले करना है. ओके, नाउ सेव, लेट्स कंपाइल इट. Java C for ex3 dot java. Uh-oh. ओके, एक हमें यहाँ पर थ्रोज एक्सेप्शन भी लगाना है कि जावा डॉट आयो इनपुट. Okay, now it's compiled. Java for, no, it's example 3 basically. Alright, it's now compiled. Java 3, ये actually example 3 था, हम 2 देख रहे थे, sorry गलती से वो गलत टाइप हो गया. Java for example 3, sorry. Enter any number, हमने नंबर एंटर किया, let's say 10, तो it is going to execute from 10 to 1, right? तो रिवर्स में यहाँ पर हमें दिखाने वाला है आउटपुट, तो देखिएगा. तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, right, like this. ओके, सपोज हम इसे एक बार फिर से एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमने फिर एग्जीक्यूट कराया, इस बार हमने कोई और नंबर दे दिया, लेट्स से 5, तो 5 4 3 2 1 लाइकवाइज. ठीक है, तो इस तरीके से आप रिवर्स में भी फॉर लूप को रन कर सकते हैं. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल. Okay, now we need to find out some thing within that loop. तो अभी हम चाहते हैं कि अप टू n हम यहाँ पे ए बी नॉट नंबर्स को फाइंड आउट करें. तो उसके लिए हमने इंटीजर i ले लिया, एक n ले लिया और बफर रीडर,
राइट, बफर रीडर्स के लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं थ्रोज आयु एक्सेप्शन, और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं java.io.star। ठीक है, स्टार इसलिए लगाया क्योंकि आईओ एक्सेप्शन, इनपुट स्ट्रीम और बफर रीडर तीनों यहाँ पर एक साथ कवर हो जाएंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पे एन को रीड करना है। प्रिंट एंड एंटर एनी नंबर। नंबर एंटर करा लेंगे एंड देन ये आ जाएगा एन में, एन इक्वल्स टू इंटीजर डॉट परसेंट and br dot read line, right? Okay, now for I equals to 1, I is less than equals to n and I plus plus, and यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके अंदर पहुंच के लूप में हमने चेक करना है whether I is even or odd और accordingly शो करेंगे। तो if I mod 2 is equals to 0, अगर I mod 2 करने पर 0 आ रहा है तो उसका मतलब इसका इवन नंबर, वो हमने यहाँ डिस्प्ले कर देना है println like even number plus I, or else simply odd number। से हमने यहाँ पर ये सेव किया इसको। नाउ कंपाइल एंड रन। Java C for ex4.java। okay, it's compiled। now run करने के लिए Java for example 4 enter any number, हमने नंबर एंटर किया लाइक 10 तो शो कर दिया, ऑड नंबर 1, इवन नंबर 2, ऑड नंबर 3, इवन नंबर 4 लाइकवाइज। ओके, तो ऐसे हर नंबर को यहाँ पे चेक करेगा सीरीज में से, एक सीरीज बन गई 1 to n, और हर नंबर को यहाँ चेक करके ये बताएगा कि कौन सा नंबर में ये इवन है या कौन सा नंबर ऑड है। ओके, वी कैन वर्क विद रेंज एज वेल। सपोज अगर हमें रेंज के साथ काम करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने दो वेरिएबल्स ले लिए से एक्स और वाई, और हियर वी वांट टू एंटर एनी रेंज एंड देन हम यहाँ पर एक्स और वाई दोनों को रीड करा लेंगे। एक्स रीड हो गया ये, और फिर वाई वाई दोनों रीड हो गए। अभी हम क्या करेंगे, अभी आई को शुरू करेंगे एक्स से और लेकर जाएंगे वाई तक, राइट। बाकी सारी चीजें सेम ही रहने वाली हैं। ओके, वापस से कंपाइल कीजिए इसको। is done and run it। से हमने दिया रेंज 1 and 8, just like this 1 to 8 यहाँ पर ही शो कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा दिया हमने रेंज, हमने दिया रेंज 10 to 15, 10 to 15 आ गया। ओके, तो वी कैन प्रोवाइड द रेंज एज वेल, स्टार्ट कहाँ से करना है एंड कहाँ पर करना है, लाइक दैट। तो ये भी हम दे सकते हैं लाइक दिस। ओके, and now you can try a few more examples।
say write a program to count numbers in between a given range. Write a program to count even and odd numbers separately between a given range. Find out the factor of a given number. Okay, so these are some questions which you can find it out, or even you can do more as well, like oh, there are number or not. Okay. Question number 5. Say write a program to count the factors of a given number. Question number 6. Write a program to sum the factors of a given number. Question number 7. You can do to check whether a given number is a perfect number or not. Right? What is perfect number? Uh, Perfect number is where the sum of factors is equals to the number itself. Sum of factors equals to the number itself is known as perfect number. Right? अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं उस फैक्टर्स में हम नंबर को खुद को इन्वॉल्व या इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. सो एग्जांपल अगर हम बात करें 10 के फैक्टर्स की, तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2 एंड 5. राइट? 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2 एंड 3. तो अगर हम इनका सम करें लाइक 6 के फैक्टर्स का, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो इट बिकम 6 अगेन. तो इसलिए यहाँ पे 6 एक परफेक्ट नंबर होगा. तो ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस एज वेल. ओके, thank you very much. We will meet in next session with some next topic. Okay, so then bye bye.